very soon. So we know the party which are getting majority, the single majority party will be called by the president to form government. Thank you very much. That's all from Calcutta for the moment. This is Kamini Sani, handing you back to Delhi. श्री विमान बोस का ये कहना है कि क्योंकि हम अपने पार्टी के प्रोग्राम को पूरी तरह फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, इसलिए और जनता से संपर्क बनाए रखते हैं, इसलिए लोग हम पर विश्वास करते हैं। उनका ये कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट जो है वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है और पिछले 14 साल से वो लोग सत्ता में हैं क्योंकि उनकी नीतियां जनता समर्थक है। और विकास के सवाल पर उनका ये कहना है कि दिल्ली, बंबई और मद्रास जैसे फंड उनके पास नहीं है, फिर भी जो कुछ वो कर पाते हैं कलकत्ता के लिए कर रहे हैं। कांग्रेसाई को समर्थन देने के प्रश्न पर उनका ये कहना है कि वो नहीं चाहते, पूरा देश नहीं चाहता कि एक और चुनाव बहुत जल्दी हो, लेकिन जो फैसला होगा वो पार्टी की मीटिंग होगी, उसमें फैसला किया जाएगा। You know, let's do a quick roundup of the results in states where we have a majority of seats already in as final results. Let's look at Maharashtra. We have final results on 36 out of 47 seats. Here the Congress is really sweeping with 30 out of 36. That's up 7 since its creditable performance last time. The BJP's got 3. That's down 4 since last time. The Shiv Sena has picked up 2 seats. Those are 2 gains. And the CPM has picked up 1. That's the defeat of Mr. Vasant Sathe. Going across to Rajasthan, we have got results on all the seats in Rajasthan, 25 out of 25. Congress has got 13 and the BJP has got 12. They split this, the state between them. I think we are ready now to go across to, oh, we're not ready. महाराष्ट्र में जो 47 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं उसमें से 36 के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। घोषित परिणामों में से कांग्रेसाई को 30 स्थान पर विजय मिली है, यानी पिछले चुनाव के मुकाबले उन्हें 7 स्थान का फायदा है। भारतीय जनता पार्टी को 3 स्थानों पर विजय मिली है और 4 स्थान का नुकसान हुआ है। शिवसेना को 2 स्थान पर विजय मिली है और 2 स्थान का फायदा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट को 1 स्थान पर विजय मिली है और 1 स्थान का फायदा हुआ है। राजस्थान के 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 25 के ही चुनाव परिणाम आ चुके हैं। कांग्रेसाई को 13 और भारतीय जनता पार्टी को 12 स्थानों पर विजय हासिल हुई है। Mr. Arjun Singh, what are your major ideological differences with the Janata Dal? What's going to stand in the way and what will you feel that certain conditions you won't be able to accept? Or are there no really substantial ideological differences? Well, with due apologies to my good friend Sri Paswan, the Janata Dal could not convince the country that they mean what they are saying. And what they said was said in such a manner that it was taken more as a gimmick than something real and substantial. That is the reason why Janata Dal has not been able to get the support it sought. So far as the ideological plank is concerned, the Congress party has always been representing what I may call the coalition of the poor. Now, if that coalition has fractured now, I must admit that the main fault lies with the Congress party. We should not blame anybody else. And this coalition now, the Congress party will address itself and see that it is again established and its credentials with those people across the country is established. Now, so far as the party's differences with the Janata Dal are concerned, our difference is that unfortunately in this process of what they thought they were trying to usher in social justice, they have let loose forces which are purely casteist, and casteism is as great an enemy of the country as communalism is. To synthesize and bring out an overall situation where these are taken care of, one can understand, but if it becomes an issue by itself, then it is a divisive influence. पासवान जी, इन चुनावों में जनता दल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? इन चुनावों में जनता दल की सबसे उपलब्धि ये रही है कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग सामाजिक न्याय की बात करना शुरू कर देंगे और अपने अपने पार्टी में भी जो समाज के दबे कुचले हुए लोग हैं उनका शीर्षस्थ पदों पर स्थान देंगे। अभी अर्जुन सिंह जी ने कहा, मैं इस बात को मानता हूँ कि कांग्रेस की जो परंपरा रही है वो सेकुलरिज्म की, सोशल जस्टिस की बात करती रही है, लेकिन प्रश्न है कि जो टॉप पोस्ट होता है, 1 से 5 स्थान जो होता है, उसमें क्या एक जाति के अलावे दूसरा जाति के लोग हैं? ब्राह्मण के अलावे दूसरा हैं? सामाजिक न्याय का मतलब जब हम गरीब की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, बैकवर्ड की बात करते हैं, तब कास्टिज्म माना जाता है।
लेकिन यदि कोई ब्राह्मण की बात करें तो कास्टिज्म नहीं माना जाता है। Will this तो be a- इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि सामाजिक न्याय भी हो और जो समाज के दबे कुचले लोग हैं उनको शीर्ष स्थान पर टॉप पोस्ट पर बैठाया भी जाए। ये है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब टुकड़ा देना नहीं है। सामाजिक न्याय का मतलब है तिजोरी का चाबी आप किसको दे रहे हैं। Will this be a condition you will insist on before supporting the Congress I? नहीं, हम तो अपने पार्टी के पूरी सम्मेलन में हमने कहा है कि जहां 4-5 पोस्ट होंगे, एक अपर कास्ट को जाएगा, एक बैकवर्ड क्लासेस को जाएगा, एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को जाएगा, एक माइनॉरिटी को जाएगा, एक महिला को जाएगा। ये है सामाजिक न्याय। वो तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। इन्होंने स्वीकार किया कि दक्षिण भारत में इन्होंने सामाजिक न्याय के रथ को चलाने का काम किया तो वहां इनका सफाया नहीं हुआ। उत्तर भारत में इसको इन्होंने छोड़ दिया, बड़े बड़े लोगों के हाथ में पार्टी को छोड़ दिया तो वहां इनका सफाया हो गया। तो ये तो आत्मशुद्धि का मामला है। हम साउथ में इसलिए नहीं घुस पाए, इसलिए कि साउथ में पहले से ही सामाजिक न्याय की प्रक्रिया तेज थी। मंडल कमीशन क्या 70% रिजर्वेशन तमिलनाडु में लागू था, 68% बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन कर्नाटक में लागू था, 50% आंध्र प्रदेश में था। तो वहाँ लोगों को नई चीज़ नहीं लगी। लेकिन बिहार में जब हमने इस स्लोगन को चलाया, गरीबों को लगा कि एक नई चीज़ हमको क्या कहते हैं कि मिल रहा है। अर्जुन सिंह जी का यही कहना है कि आपने स्लोगन चलाया, आप लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ कि यू रियली मीन व्हाट यू आर सेइंग, कि आप जो कह रहे हैं वो करना भी चाह रहे हैं, वो स्लोगन ही रहा। हमने पहली बार लोगों को ये महसूस हुआ कि हमने स्लोगन नहीं चलाया बल्कि हमने अपनी सरकार की कुर्बानी भी दे दी। भारतीय जनता पार्टी का तो यही एलिगेशन है कि मंडल कमीशन यदि ये नहीं चलाए रहते तो हम कहते हैं कि राम रथ नहीं चलाते। कुर्बानी के नाम पर डॉक्टर स्वामी हल्का सा मुस्कुराए थे, क्या वजह है? देख, हाँ, इन्होंने कुर्बानी दी। इन्होंने इनका सपोर्ट, बीजेपी ने सपोर्ट विड्रॉ करने के बाद भी ये डटे रहे और विश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए इंसिस्ट की। प्रेसिडेंट से 2 हफ्ते के टाइम भी मांगी और नवंबर 7 को उन्होंने वोट भी डलवाया और सबको पता था वो हारने वाले थे। तो इतना कुर्बानी करना तो 24 अक्टूबर को ही इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए था। इसलिए हमने नहीं दिया उस समय में कि चूंकि दोस्त और दुश्मन का, गद्दार और दोस्त का पहचान कैसे होता है कि कौन लोग पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं। वो तो अब पब्लिक जानती है कि किसने देश के साथ दुश्मनी की। अच्छा साहब, आप सयानों ने देश को इस हालत तक पहुंचाया है, जितने भी हमारी पार्टियां हैं और नेता हैं। अब आगे आने वाले दिनों में देश का क्या हाल होगा, ये सवाल मैं अर्जुन सिंह से पूछना चाहता हूं कि नई सरकार कब तक बनने की आपको उम्मीद दिखती है? टाइम फैक्टर का तो मैंने अभी आपसे कहा कि आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जहाँ तक रात को होगी और इन सब मामलों में तो फैसला बोर्ड ही लेगा। लेकिन भविष्य में क्या करने के जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का तो जैसा अभी मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि एक तो हमें देश की एकता को मजबूत करने के लिए हर कदम उठाना पड़ेगा। जो फिरका परस्ती, जो अलगाववाद और कुछ कहीं कहीं फासिस्ट मनोवृत्ति का भी परिचय हमें मिल रहा है, इन पर अंकुश लगाना और सख्ती से इनको दबाने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का जो सदैव से कार्यक्रम और नीतियां रही हैं, उनमें उन सब बातों का समावेश है जो आज और पार्टियों को लगता है जैसे उन्होंने आविष्कार किया हो उसका। हम अगर कहीं हमको नुकसान हुआ है तो शायद हम अपने कार्यक्रमों और नीतियों को उतनी कड़ाई से लागू नहीं कर पाए, इसलिए अब उनको फिर से वो करके आगे बढ़ाने की बात है। We have a quick roundup of the South now, because let's go to another topic and look at the southern position in all the states in the southern part of the country, starting with Andhra Pradesh, in which we have leadings in 17 out of 41, or the rest will be counted today. Now the Telugu Desam has got 10, the Congress I 3, the BJP 2, the CPM 1 and the CPI 1. Now let's go across to results in Karnataka in 23 seats. Here the Congress I has got 19 out of 23, that's down 3 but still doing very well compared to last time, and the BJP has picked up the other 4. If we look at the Kerala leadings at the moment, in the 20 seats that we have information on, the Congress I is leading in 14, the Muslim League in 2, that's an ally, the CPM in 2, and the Kerala Congress Money Group in 1, and the Congress S is leading in 1. And going across now finally to Tamil Nadu, we have information leadings on 38 out of 39 seats. Here the Congress I has got 27 out of the 38, and the AIDMK has picked up the other 11. Now let's go straight across to Jennifer Arul, who's waiting for us in Madras. Good morning. For the very first time in history, there will be virtually no opposition in Tamil Nadu.
With us here is Mr. Valapudi Ramamurthy, the TNCCI president. Sir, your alliance with the AIADMK has virtually wiped out the DMK party. Now, do you think this is in a way due to the assassination of Rajiv Gandhi here in Tamil Nadu? Even prior to the assassination of my leader Rajiv Gandhi, we were in a comfortable position. But of course, definitely this assassination has the root cause for the complete elimination of the DMK from the political scene of Tamil Nadu. Will your party be a part of the new government, or will you in fact support it from the outside? No, Congress I will support the AIADMK government from outside only. We will not join at any time. It's very obvious that there seems to be tremendous infighting within the Congress here in Tamil Nadu. What do you think the reason is for that? No, any political party, this difference of opinions bound to be there, and also the dissidents' activities also used to be there. You kindly let me know where it is not there, which part it is not there. We will try to minimize it, that's all. What are you going to do to strengthen the image of the Congress party? See, my position has been vindicated by the results. As a part of my strategy, I wanted to eliminate DMK from the political scene of Tamil Nadu. That has been done now. I think now we are in a peculiar situation. We have to play a major role in the assembly. As an alliance parties, we have to go for a constructive cooperation we have to extend. At the same time, we have to play an opposition role also. So people will sit and discuss, and then we will start chalk out the strategy and the future plan also. Thank you very much, Mr. Ramamurthy. I'm Jennifer Arul in Madras, handing you back to New Delhi. दक्षिण भारत में स्थिति इस प्रकार से है, तस्वीर इस तरह से उभर रही है। आंध्र प्रदेश में 41 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 17 की जो सूचना है उसके मुताबिक तेलुगु देशम 10 स्थान पर आगे है, कांग्रेस 3, भारतीय जनता पार्टी 2, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट 1 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1 स्थान पर आगे है। कर्नाटक में 27 में से 23 चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं, कांग्रेस 19, भारतीय जनता पार्टी 4। केरल में जो रुझान है, लीडिंग है, वो इस प्रकार है, कांग्रेस 14, 20 में से 20 की जो सूचना है उसके मुताबिक कांग्रेस 14 स्थान पर आगे है, मुस्लिम लीग 2 पर आगे है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट 2 और एक और मैं ठीक तरह से लिख नहीं पाया उसे जो भी। तमिलनाडु में 39 में से 38 स्थान की जो सूचना है उसमें कांग्रेस 27 पर आगे है और अन्ना डीएमके 11 स्थान पर आगे है। कांग्रेस के पदाधिकारी से हमारी संवाददाता जेनिफर अरुल ने जो बातचीत की, उनका ये कहना था कि पहली दफे ऐसा होगा तमिलनाडु में कि विधानसभा में शायद कोई विपक्ष नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस अन्ना डीएमके की सहयोगी है और श्री राजीव गांधी की हत्या से पहले भी तमिलनाडु के लोगों ने अपना दिल बना लिया था, फैसला कर लिया था कि वोट कांग्रेस को ही देना है, लेकिन श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद ये फैसला और मजबूत हुआ और कांग्रेस की छवि इन चुनाव परिणामों के बाद से और ज्यादा निखरी है। Well, Vinod, a lot of things have been said in this program in particular about the BJP. Let's go across to the BJP headquarters to get their reaction to the accusations or the comments made about them. It's only fair, I think. I think it's only fair. The accusations against the BJP are plenty. Perhaps the main one is that it's a communal party. But in keeping with its image of a very disciplined party, the atmosphere here is a very sober one. But the disappointment is there all right on the faces and in the working of the party supporters, workers and the leadership. Mr. Govind Acharya, the party general secretary, is here. बीजेपी को इतना सांप्रदायिक पार्टी माना जा रहा है, क्या यही वजह है आपके पोर शो की? ऐसा कोई कारण नहीं है। राष्ट्रवादी पार्टी को या राष्ट्रवाद को इस देश में कुछ कारणों से संप्रदायवाद के नाते बदनाम किया जाता है और अल्पसंख्यकवाद बिना किसी चुनौती के सेक्युलरिज्म की नकाब ओढ़े चला जा रहा है। ऐसी राजनीतिक स्थिति में हम लोगों ने तो जानबूझकर इस बार के चुनाव को राष्ट्रवाद बनाम मिथ्या सेक्युलरवाद, दैट इज स्यूडो सेक्युलरिज्म, इस नाते हम लोगों ने बढ़ाया ही था। और इसमें हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव को भी ले लें। ये सूडो सेक्युलरिज्म का मुद्दा तो आपने काफी उठाया, हमने हाँ उठाया, लोगों ने इसे माना नहीं है। लोगों ने मान्य किया है। ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि हम जिस प्रकार का ध्रुवीकरण चाहते थे, उस ध्रुवीकरण का नतीजा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल या दिल्ली सदी के हमारे प्रभाव क्षेत्रों में अन्य सब राजनीतिक दलों को एकजुट होना पड़ा हमारा मुकाबला करने के लिए। ध्रुवीकरण में हमें कामयाबी मिली। क्या ये ध्रुवीकरण चाहते थे कि हंग पार्लियामेंट हो और इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो? इस ध्रुवीकरण की प्रक्रिया में से ही देश का भविष्य ठीक निखर सकेगा, जब तक राष्ट्रवाद पर ठीक बहस नहीं होगी कि ये किस प्रकार की संकल्पना है। धर्मशाला कल्पना राष्ट्रवाद की नहीं चलेगी। अब क्या लगता है सरकार कौन बनाएगा? कांग्रेस को किसके सहारे की जरूरत पड़ सकती है? हम तो जो दृश्य देखते हैं उसमें लग रहा है कि विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता को छोड़कर
राजनीतिक अवसरवाद आगामी दिनों में संभवतः हावी हुआ मिलेगा अपने। लेकिन कांग्रेस किसका सहारा लेगी? कांग्रेस तो किसी का भी सत्ता में आने के लिए सहारा ले सकती है, यह तो उसकी प्राचीन परंपरा है। आपने भी तो सत्ता में आने के लिए महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन किया था। हमने सत्ता में आने के लिए कतई नहीं किया, कुछ मुद्दों पर जब समानता देखी तभी हमने सामयिक तौर पर समझौता किया और विलय तो कतई नहीं। अभी हाल ही में वाजपेयी जी ने कहा था कि इन चुनावों के बाद शिवसेना के साथ गठबंधन समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन वो गठबंधन चलता रहा। ये भी तो अवसरवादी बात थी। वाजपेयी जी ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने मात्र इतना कहा कि कई मुद्दों पर हमारी असहमतियां हो सकती हैं, मगर चुनाव की दृष्टि से कई मुद्दों पर सहमति होने के कारण, व्यापक तौर पर राष्ट्रवाद के संबंध में समानता होने के कारण हमने समझौता किया। सरकार बनने की बात चल रही है, लेकिन बीजेपी के साथ कोई नहीं मिलता। व्हाई इज बीजेपी सच एन अनटचेबल? ये तो अभी की प्रक्रिया थोड़े समय तक दिखती है, लेकिन बाकी के दलों के वैचारिक दिवालियापन के कारण हमको यह तो संकट दिखाई ही नहीं पड़ता। श्री गोविंद आचार्य का मानना है देश संकट में है। दिस इज शशि मेहता फ्रॉम बीजेपी हेडक्वार्टर्स एंड ओवर टू प्रणॉय। अर्जुन सिंह जी, पासवान जी, स्वामी जी, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहा, उन्होंने आपको अवसरवादी कहा, तो आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले क्या है कि गोविंदाचार्य जी का ये कहना है कि सरकार बनाने के लिए कांग्रेस आए किसी का भी सहारा ले लेगी, ये राजनीतिक अवसरवाद है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सरकार बनाने की प्रक्रिया में क्या स्थिति निकलेगी ये तो मैंने कहा कि आज कहना मुश्किल है, लेकिन ये गोडसेवाद को राष्ट्रवाद कहा जाएगा तो मैं समझता हूँ इस देश का भविष्य तो बहुत अंधकार में है। गोडसेवाद से आपका क्या तात्पर्य हुआ? मैं केवल आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो गोडसे ने ये अपनी दलील दी थी, जिसको उन्होंने अदालत में भी पेश किया, कि राष्ट्र की रक्षा करने के लिए ही उन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। और आज भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन करके और उस तरह के राष्ट्रवाद की पुष्टि कर रही है जो गोडसे ने 1948 में जिसका प्रतिपादन किया था। पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी की ये राष्ट्रवाद की परिभाषा से आपको क्या एतराज है? नहीं, राष्ट्रवाद का मतलब ब्राह्मणवाद थोड़े होता है। राष्ट्र जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं है क्या? पिछड़ी जाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? जब उनके न्याय की बात आती है तो ये विरोध क्यों करते हैं? और अभी तो शिवसेना ने साफ कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम महात्मा गांधी का प्रतिमा हटा करके नाथूराम का लगाएंगे प्रतिमा। तो उनके लिए दशरथ के बेटे राम प्रतीक नहीं है, उनके लिए नाथूराम प्रतीक है। तो इस परिस्थिति में हिंदू राष्ट्र का मतलब, और सबसे बड़ी बात है कि जब राजनीति मंदिर से शुरू होगी तो फिर भिंडरवाला को क्यों हम गाली देते थे कि वो राजनीति गुरुद्वारा से शुरू कर रहा था? तो इसीलिए आपको राजनीति करनी है, सियासत की राजनीति कीजिए। राम कोई भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थोड़े हैं कि राम को आप राजनीति में घसीट रहे हैं। स्वामी साहब, उन्होंने वैचारिक दिवालियापन कहा है बाकी पार्टियों का। The problem with the BJP's definition of nationalism is it's totally negative. It's defined in terms of how much the Muslims lose. All their programs, if you highlight, they are all oriented towards that. Take for example Article 370. Now there's a similar Article 371, but they'll never talk about that. That deals with Northeast, which says the same thing. But same thing with the Ram Mandir. They don't talk about Kailash Mansarovar, which is even more pavitra for us. So their whole program is not in terms of any constructive program, but in terms of how the Muslims can be brought down. That is the main objection to their definition of nationalism. I think BJP will call its present position majestic isolation, and you gentlemen will call it being a political pariah. Pranay, I just wanted to ask you, we talked a lot about the BJP. What about the non-BJP parties? We've heard that, most people say, in fact, there's no real major ideological difference. It's basically personality and ego differences. What is more difficult to get together? To overcome ego problems or overcome ideological problems? I think the time has come for the country to think in terms of teamwork, and I think the modern state is so complex. The single personality based politics has led to these kinds of differences, and the electorate also has responded in that way. And either we should have a presidential system if we are going to stick to this personality based politics, or we will have to develop the concept of teamwork, where you have a regular party with the shadow cabinets, and which work on the basis of dealing with problems on a complex basis. That's broader questions which we shall get into. We'll come to later. I think we could give the headlines. Let's have a look at the headlines at this hour.
At the moment, the headlines are Assembly upsets in 5 states, in Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Kerala, Andhra Pradesh and Haryana. There will be a change in government. In Madhya Pradesh, the Congress I has bagged 2/3 of the seats. The Congress I is stronger in its June vote than in the May vote. That's the second round. It's doing better. The swing is higher in its favor than in the earlier rounds. And Mr. Ajit Singh wins in Bagpat. And in West Bengal, Priya Ranjan Das Munshi of the Congress I is trailing in Hara in West Bengal. कार्यक्रम के अंत में मुख्य समाचार इस प्रकार है। 5 विधानसभाओं में नतीजे उल्टे, नई सरकारें आएंगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 2/3 सीटें कांग्रेस आई ने जीती। जून के दूसरे दौर के मतदान में कांग्रेस आई को ज्यादा समर्थन मिला। बागपत में श्री अजीत सिंह फिर से जीते और बंगाल में श्री प्रियरंजन दास मुंशी पिछड़े। हमारा अगला चुनाव विशेष कार्यक्रम 12:40 पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने का, और तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार।